آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میری دعا ہے کہ آج کا پیغام آپ کو اپنی آواز استعمال کرنے کی طاقت دے گا، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ پاسٹر ڈورن کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں۔ یہ نوٹس آپ کو ہماری ایپ پر بھی مل جائیں گے۔ پاسٹر ڈورن آج کے پیغام میں اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ جو وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ پاسٹر ڈورن وضاحت کر رہے ہیں کہ بائبل میں اسے کس طرح پیش کیا گیا، عہد کیسے بنا اور یہ کیسے پورا ہونے والا تھا اور پھر کیسے پورا ہوا۔ تو آئیں آج کا پیغام شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے وعدہ نبھانے والا۔ خیر، ہم تھوڑی دیر میں اپنے پچھلے ہفتے کے پیغام کو دیکھیں گے، پیدائش 2 باب کی 15ویں آیت، اور میں دوبارہ کچھ چیزوں کو دیکھوں گا کیونکہ یہ بہت ہی بنیادی ہیں، بہت اہم ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، خدا نے انہیں باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کریں کہ ابلیس آتا ہے اور آدم اور حوا کو آزماتا ہے۔ اب جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو اس نے کیا کیا؟ شیطان باغ عدن میں آدم اور حوا کے پاس آتا ہے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد پیدائش اس کا 1 باب کہتا ہے کہ اس نے انہیں اختیار بخشا۔ زبور 8 باب میں وہ کہتا ہے تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ رومیو 5 باب کی 17ویں آیت میں مجھے یہ آیت بہت پسند ہے، خاص طور پہ وہ موت کا ترجمہ۔ وہ کہتا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، اس موت نے اپنی بادشاہی شروع کر دی۔ تو واقعی کیا ہوا کہ ابلیس نے انسان کی بادشاہی اور انسان کا اختیار چھین لیا اور اس اختیار کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ابلیس یہ اختیار شروع سے ہی لینا چاہتا تھا، وہ انسان کے پاس کوئی بھی اختیار رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو اس نے موت کے سبب سے یہ اختیار جو خدا نے دیا تھا ایک انسان سے چھین لیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ 2 کرنتھیوں کا 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ بائبل نے ابلیس کے بارے میں کہا، اس جہان کے خدا یسوع کہتا ہے، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، وہ ابلیس کی بات کر رہا ہے۔ 1 یوحنا 5 باب اس کی 19ویں آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں سے ہم ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، واقعی وہ یہ ہے کہ بائبل 2 لوگوں کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ آپ کا 2 لوگوں سے تعلق ہے۔ ان دونوں کا نام آدم ہے۔ پہلا آدم باغ عدن میں حوا کے ساتھ رہتا تھا۔ خدا نے آدم کو ہمارے لیے بطور نمونہ بنایا تھا۔ اس نے آدم میں وہ سب کچھ ڈال دیا جو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے چاہتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدم نے پیدا کیا اس حالت میں نہیں جس میں خدا نے اسے پیدا کیا تھا، بلکہ اس حالت میں جس میں وہ گر پڑا۔ گناہ، مرض، موت، بیماری، یہ سب چیزیں آئیں، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں پیدا کیا وہ جس حالت میں گر پڑا۔ وہ وہی حالت ہے جس میں اس نے دوبارہ پیدا کیا۔ وہ پہلا نمائندہ آدمی تھا، وہ انسان کے لیے پہلا نمائندہ آدمی تھا۔ اب 1 کرنتھیوں 15 باب کہتا ہے کہ خدا نے آخری آدم کو بھیجا، دوسرا نمائندہ آدمی۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، یہ آدم ہے، لیکن دوسرا آدم آسمانی ہے، ٹھیک ہے، آخری آدم یسوع ہے۔ خدا نے یسوع کو آسمان سے نمائندہ انسان کے طور پر بھیجا ہے، اور جب یسوع صلیب پر گیا تو اس نے آپ کی نمائندگی کی، اس نے آپ کی حالت کو صلیب تک پہنچا دیا، اور وہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے مر گیا۔ لیکن اس نے آپ کی حالت کی قیمت کو ادا کیا، اس نے آپ کی قیمت ادا کی ہے، اور اسے دفن کیا گیا، اور وہ دوبارہ جی اٹھا۔ اب آپ اس کی موت میں ہی صرف اس کی شناخت نہیں کرتے، بلکہ اس کے جی اٹھنے میں بھی اس کی شناخت کرتے ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ آپ کو بھی اس کے ساتھ دفن کیا گیا، کہ آپ اس کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور جس طرح آپ کی حالت برمحل پہلے آدم جیسی تھی، لیکن اب آپ کی حالت دوسرے آدم یا آخری آدم جیسی ہے۔ چنانچہ بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے، 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت۔ اب مسیح میں ہونا یہ واقعی پولس کے تمام خطوط میں ایک تکنیکی اصطلاح ہے۔ مسیح میں، اس میں، جس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع آپ کو صلیب پر لے گیا اور آپ اس کے ساتھ مر گئے۔ غلطیوں اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں پولس کہتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور جیسا اس نے کہا آپ بھی اسی طرح اس کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ دفن کیے گئے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ جی اٹھے۔
اور آپ اس کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بیٹھے ہو، آسمان پر اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ اس کی طرح ہونے والے ہیں۔ لہٰذا جب آپ خدا کے ساتھ راست باز ہو جاتے ہیں تو آپ بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسیح میں ہے، گرجا گھر میں نہیں۔ آپ گرجا گھر میں ہو کر غلط ہو سکتے ہیں، آپ گرجا گھر میں ہو کر بھی مسیح میں نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ نئی مخلوق ہیں، نہ آپ بننے والے ہیں اور نہ ہی آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ کسی دن آپ کو وہاں پہنچنے کی امید ہے، لیکن اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ نئی مخلوق ہیں۔ پرانی چیزیں، آپ کا آدم سے تعلق جاتا رہا۔ میں گرجے گھر جاتا ہوں، میں خدا پر یقین کرتا ہوں، مجھے لگا کہ وہ ناراض ہے، مجھے لگا کہ وہ مجھے نہیں چاہتا۔ میں 20 سال کا ہوں اور میں بعض اوقات اس طرح کی خدمت میں جاتا ہوں، اور اس کے بعد بروس رابرٹس آئے اور مجھ سے بات کی اور رومیو کی کتاب کے 10ویں باب کی کچھ آیات مجھے بتائیں۔ میں گھٹنوں کے بل ہو گیا، میں نے دعا کی، میں اٹھا اور واقعی کچھ مختلف محسوس نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے ہمارا ایک دوست تھا، وہ پہلے بھی اس کا دوست تھا، وہ اس وقت میرا دوست بنا تھا اور میں اس وقت کیلون کالج میں تھا، اور ہم سب ہر صبح لائبریری کی تیسری منزل کے ایک کونے پر اکٹھے ہوتے تھے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، ہماری دعا کے بعد اس نے مجھ سے کہا، جب کل آپ ہمارے دوست کو دیکھیں گے تو آپ اسے بتائیں گے کہ میں نے نجات پائی ہے۔ تو اگلی صبح میں کیلون کالج کی لائبریری میں جاتا ہوں اور وہاں میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں اور میں نے اس سے کہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات میں نے نجات پائی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم پھر کبھی دوست نہیں تھے؟ اب یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ تمام چیزیں جو میں پسند کرتا تھا اب میں نہیں کرنا چاہتا، اور وہ تمام چیزیں جو میں پسند نہیں کرتا تھا اب وہ مجھے پسند ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ ہم ہر اتوار کی صبح اور رات گرجا گھر جایا کرتے تھے اور رات میں واپس گھر آتے تھے، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا، مجھے یاد نہیں ہم اسے کیا کہتے تھے، لیکن یہ ایک ٹی وی تھا، یہ ایک AM FM ریڈیو تھا اور ایک ریکارڈ پلیئر تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو ان میں سے کچھ یاد ہے؟ ٹھیک ہے، تم سب بوڑھے لوگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اتوار کی رات کو گرجا گھر سے واپس آتے تھے تو میرے والد وہاں پر ووفر لگایا کرتے تھے۔ آپ میں سے جو نہیں جانتے انہیں میں بتاتا چلوں کہ وہ مذہبی اسٹیشن ہے، لیکن مکمل مذہبی نہیں، یہ پرانا گیتوں کا اسٹیشن تھا، اور وہ دوسری جنگ عظیم میں تھا، اور اس نے اپنی بندوق سے کئی بار گولی چلائی کیونکہ وہ سن نہیں سکتا تھا، تو وہ آواز کو اونچی کر دیتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں سونے جا رہا تھا اور اپنا تکیہ لے کر اپنے کانوں پر لگا رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس گیت سے نفرت ہے، مجھے نفرت ہے، لیکن اب میں ایک نئی مخلوق ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ میں لوگوں کے ارد گرد خدا کی حمد گانا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ تمام چیزیں جو پہلے میں نہیں کرنا چاہتا تھا میں اب کرنا چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا تھا اب وہ چیزیں نہیں کرتا۔ میں پہلے مختلف انسان تھا اور اب میں ایک نئی مخلوق، ایک نیا انسان ہوں۔ میں بالکل بدل چکا ہوں، میں نیا ہو چکا ہوں، اب میں ایک نئی مخلوق ہوں۔ سنیں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ مسیح میں ہوتے ہیں، تو آپ گناہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے مزید لطف اندوز نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے اندر کچھ ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ بھروسہ کرو اور اطاعت کرو، یسوع میں خوش رہنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مسیح میں ہیں اور مسیح کی پیروی نہیں کر رہے تو آپ خستہ حال ہیں، شاید گناہ گار بھی، کیونکہ اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ گناہ کر کے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ ایک نئی مخلوق ہیں۔ ایک ترجمہ دراصل کہتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ تو آدم اور حوا انہوں نے گناہ کیا اور اپنا اختیار کھو دیا۔ ابلیس واقعی بادشاہی پر قبضہ کرنے کا موقع چھین لیتا ہے، اور حقیقی طور پر خدا باہر سے اندر دیکھ رہا ہے۔ اسے ابراہم نام کا ایک آدمی ملتا ہے، یہ پیدائش کے 12ویں باب کی 2 آیت ہے، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اسرائیل کی قوم کو، اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو
22 से बरकत हो। खुदा की हिकमत अमली जो तुझे मुबारक कहे मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। और फिर ये आखिरी जुमला जिसका नए अहदनामा में हवाला दिया गया है, और ये कहता है कि पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी गई थी। ये वो जगह है जहां इब्राहिम को इंजील की खुशखबरी की तबलीग की जाती है, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये मसीहा का वादा है अब्राहम से। औरत की नस्ल, वो जो बादशाही को अबलीस से वापस लेने वाली है, तो इससे वो वादा करता है। खैर, अब्राहम उस वक्त 90 की दिहाई में है और उसकी कोई औलाद नहीं है, और उसने कहा कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं? खुदा ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू कोई जानवर ले और उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दे। और वो एक अहद करते हैं, मुआहदा नहीं, लेकिन वो एक अहद का मुआहदा करते हैं। अब बाइबल यहां क्या कहती है? पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में, जहां उसने एक अहद की तस्दीक करनी है, तो वो अहद करते हैं एक दूसरे से। खुदा बाप और बेटा टुकड़ों के जरिए चलते हैं, और वो वादे नए अहदनामा में पाए जाते हैं। और हम आने वाले हफ्तों में इन वादों के बारे में देखेंगे। इनमें से एक यीशु दरअसल बाप के वादे के तौर पर हवाला देता है। पैदाइश 22वां बाब ये वो जगह है जहां से वो आया है। आप इसे नए अहदनामे में कई बार पाते हैं। बाप का वादा जो रूहुल कुद्स का वादा है, जो आपको बाइख्तियार बनाने के लिए आप पर आ रहा है। जो इख्तियार इब्लीस ने छीन लिया था वो आपको वापस देने आ रहा है। लेकिन तमाम मसीह में, उसमें जिसमें ये वादे किए गए हैं, तो अब्राहम ये अहद करता है। लेकिन वाकई खुदा बाप और बेटा जाहिर हुए, ये हमें नए अहदनामा में बताता है कि बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक वास्ते से कहा जाता है कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह। तो वाकई खुदा बाप और खुदा बेटा नीचे आए हमारे लिए, अपने उस वादे के लिए। खुदा बाप और उसका बेटा जमीन पर आए। पैदाइश उसका 15वां बाप, और वो ये अहद का वादा करते हैं, और वो ये यीशु और खुदा बाप है, और अब्राहम की नुमाइंदगी उसकी नस्ल और यीशु ने की है। और खुदा वादा करता है कि सबसे पहले पैदाइश उसका 3रा बाप उसकी 15वीं आयत में कि छुड़ाने वाला औरत की नस्ल से आएगा। उसे सबसे पहले औरत की नस्ल कहा जाता है, फिर उसे अब्राहम की नस्ल कहा जाता है, फिर बाद में दाऊद की नस्ल। खुदा बयान करता है कि खुदा का वादा दुनिया में कैसे आने वाला है। बस वादा खुदा बाप खुदा बेटा के वसीला से आया है। गलतियों 3रा बाप और उसकी 29वीं आयत। इस आयत में कुछ यूं लिखा है कि अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। चुनाचा तमाम वादे खुदा बाप खुदा बेटा के जरिए किए गए हैं। आप इन वादों के वारिस बन जाओ। ये वो वादे हैं जो खुदा ने अब्राहम से किए और मसीह यीशु के वसीला से पूरे हुए। पैदाइश 22वें बाब में खुदा अब्राहम को आजमाता है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया। अब वो सिर्फ आजमाइश नहीं थी, ये एक इम्तिहान था कि अहद को बरकरार रखने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है, क्या वो करेगा? ये अहद की आजमाइश है। और फिर हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक अहद में दाखिल होते हैं, और ये शादी का अहद है। अब 2 एक बन गए, और जो कुछ एक का है वो दूसरे का है। लिहाजा खुदा अब्राहम को आजमा रहा है कि आया वो अपने अहद को बरकरार रखेगा। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तो बाइबल कहती है अगली सुबह सवेरे अब्राहम उठा, अपने बेटे और चंद नौकरों को अपने साथ लिया, और वो 3 दिन का सफर तय करके मोरिया पहाड़ पर पहुंच गए। ये वो तस्वीर है जहाँ ये सब हुआ। आज अगर आपको यहाँ पर जाना हो तो ये हैकल के पहाड़ पर है। ये कदरौन के नाले के बिल्कुल करीब है। ये स्कोप्स के पहाड़ पर है। और ये तस्वीर जो आप देखेंगे सोने के गुंबद के नीचे। ये सोने का गुंबद 7वीं सदी में बनाया गया था, जब मुसलमानों ने इसराइल की जमीन को फतह किया था। उन्होंने ये गुंबद इस जगह पर बनाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहूदी हैं, मसीही हैं या मुसलमान हैं। सब जानते हैं कि ये वो जगह है जहां अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने वाला था। अगर आप दीवारों को गायब कर सकते हैं तो, और फिर वो दीवार जो आप देखते हैं हैकल की, वो मशरकी दीवार,
वाकई यह हैकल का पहाड़ है। अगर आप इसे गायब कर सकते हैं तो ये गुलगोटा नामी जगह से शायद आधा मील के फासले पर है। खोपड़ी की जगह ये वही है जहाँ यस्सु को मसलूब किया गया था। आप देख सकते हैं ये उसी पहाड़ का मंजर है जहाँ यस्सु मसीह को मसलूब किया गया था। अब अब्राहम को अपना बेटा देने के लिए तैयार होना था। आप कहते हैं क्यों? इसलिए कि खुदा अपना बेटा देने वाला था, और इसलिए उस दिन अब्राहम ने कहा यहोवा यरी। और आप में से कितनों को याद है या यहाँ ये कोई गीत गाया करता था, यहोवा यरी मेरा मुहैया करने वाला, मेरा मुहैया करने वाला। मैं जानता हूं आप नहीं चाहते कि मैं गाऊं, ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं। मेरे कभी ना गाने की वजह यह है उन्होंने मुझसे 5वीं जमात में रजा कराना क्वायर्स गाने को कहा। मैं जानता हूं कि ये मेरा तोहफा नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं, आप जानते हैं यहोवा यरी यानी खुदा मुहैया करेगा, यहोवा खुदा। खैर असल में उसने क्या कहा कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा, मोरिया पहाड़ पर जहां अब्राहम अपने बेटे को पेश करने जा रहा था। खुदा वहीं पर अपने बेटे को पेश करने वाला था, लेकिन अब्राहम को रजामंद होना पड़ा। तो आजमाइश सिर्फ ये आजमाइश नहीं थी कि आप अच्छे आदमी हैं, और खुदावंद के आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेक ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। अब ये समझे कि ये नए अहदनामे में इब्रानियों की किताब में ये बात करता है, लिहाजा खुदा झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। वो कहता है तो मैंने अपनी ही कसम खाई है, क्योंकि मैंने अपने से बड़ा ना पाया जिसकी मैं कसम खा सकूं। दो चीजों के जरिए जो नामुमकिन है ना हो, पहला खुदा ने ये कहा और दूसरा खुदा ने उसकी कसम खाई। तो उसने अपनी जात की कसम खाई। खुदावंद फरमाता है, चूंकि तुमने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेक न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मेरा पसंदीदा तर्जुमा, हो मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ऐसे ही कहें, हो मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। खुदा आपको सिर्फ बरकत नहीं देगा, हो बल्कि बरकत पर बरकत देगा, क्योंकि अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। ये वादा है, हम सिर्फ छोटी बरकतों के बारे में बात नहीं कर रहे, ये खुदा का वादा है। ओह, ये बरकतें छोटी नहीं हैं, बल्कि बाइबल कहती है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की बरकत बख्शी। तो खुदा ने पुराने अहदनामे में बहुत कुछ किया है। पुराने अहदनामा में आप खास तौर पर देख सकते हैं, और अगर आप इसे समझते हैं तो आप समझते हैं कि यह आपका अहाता करता है। लेकिन बाइबल खुदा और उसकी रहमत के बारे में बात करती है। आप जानते हैं, आप पुराने अहदनामे में देखते हैं, ज़बूर 136 में ये उसकी शफकत है, HESET इब्रानी में शफकत को कहा जाता है, और इसका मतलब रहम नहीं है, इसका मतलब है अहद की रहमत, बेपाया वफादारी और एहसान। ये इसलिए कि खुदा ने ऐसा करने का वादा किया है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक अहद की मोहब्बत, वफादारी, लामतनाई एहसान है, जैनी लाजवाब है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मैं नाराज हुआ हूं और चंद बार, शायद उससे ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि वो मुझसे नाराज हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक अहद है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है। बाइबल इस तरह कहती है, और सुने, नए अहदनामा में वो कहता है, जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। जब आप अहद में होते हैं, जो आप दूसरों के लिए करते हैं तो वो आप अपने लिए करते हैं। यही हमारा रिश्ता है। और फिर ज़बूर 136 में आप हर उस चीज को देखते हैं जो खुदा करता है, और बार बार वो यही कहता है, क्योंकि उसकी शफकत, उसकी लाजवाल अहद की मोहब्बत, वफादारी, एहसान अबदी है। और यही वो रिश्ता है जो आज आपका और मेरा है। पैदाइश 12वां बाब, पैदाइश उसका 15वां बाब, जहां वो अहद बनाते हैं, पैदाइश उसका 22वां बाब।
इन सब जगहों पर एक ही बात है, आप इसका मुताला करें और इन बातों को पढ़ें जो लिखी हैं, क्योंकि ये सब हमारे लिए है। ये सब एक ही कहानी है, ये वादे की कहानी है। ये वो कहानी है कि खुदा अब्राहम के जरिए, बनी इसराइल के जरिए, दाऊद के जरिए औरत की नस्ल को कैसे लाता है, नस्ल यहाँ कैसे आती है, और फिर मुकाशवा से मती तक खुदा का हिस्सा है। खुदा को अपने अहद के इख्तिताम को बरकरार रखना है, और ये बाइबल है। मुकाशवा से मती तक खुदा ने मसीह में कलवरी पर अपने अहद को बरकरार रखा, और फिर इसके नतीजा में क्या हुआ। लिहाजा ये वो है जहां हम हैं, और ये पिछले हफ्ते का तारुफ है। लिहाजा हम यहाँ नए हिस्से पर जाते हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि हम वहां पहुंच गए हैं। मुझे यकीन नहीं आता। खैर, दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत। इसलिए अगर कोई मसीह के साथ इत्तेहाद में है, या सिर्फ मसीह में, हम सब आदम के साथ इत्तेहाद में शुरू करते हैं। अब बाइबल कहती है, रोमियो का 5वां बाब, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं। ये ऐसा है कि आप मुझसे कहें कि आप हॉलैंड स्ट्रीट पार्क कैसे जाएंगे, और मैं कहूंगा आप जानते हैं कि वुडलैंड मॉल कहाँ है, और आप कहें हाँ, और मैं कहूं उसका कोई ताल्लुक नहीं। खैर, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं। मेरा मतलब है वो मुख्तलिफ है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपने गुनाह नहीं किया, आप सिर्फ आदम में से पैदा हुए थे। लेकिन ये फजल की नेमत के बारे में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फजल की नेमत आपको खुद मुंतखब करनी है। और बाइबल आगे बढ़ती है और इस बारे में बताती है कि किस तरह फजल की नेमत गुनाह से बहुत बड़ी है। तो दूसरे लफ्जों में, जो इब्लीस ने आदम के जरिए किया वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा खुदा ने मसीह के जरिए से किया, और आप उसके साथ इत्तेहाद में हैं। आप बनने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ऐसे हो जाएंगे। आप हैं। जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो आप उसके साथ इत्तेहाद में होते हैं। आप होते हैं। कुलसियों 1 बाब और उसकी 12वीं आयत, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा पाएं। तो खुदा ने हमको इस लायक किया। आप इसलिए लायक नहीं है कि आप 38 साल से गीत गाते हैं, क्योंकि आप बच्चों की वजारत में काम करते हैं, क्योंकि आप दुआ करते हैं या रोजा रखते हैं, या इसलिए कि आप बाइबल पढ़ते हैं, या आपने कुछ खास रकम दी है। ये वो चीजें नहीं है जो आपको लायक बनाती हैं। खुदा बाप ने आपको लायक बनाया है जब उसने आपको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, और यीशु की राजबाजी को लेकर आप में दाखिल किया। दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 21वीं आयत, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। उसने आपकी हालत अपने ऊपर ले ली ताकि आप उसकी तरह बन सकें। उसी ने उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा के रास्तबाज हो जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप कहें कि मैं रास्तबाज हूं। अब आप में से कुछ मजहबी गैर हरकत करने लगे हैं। नहीं, मैं एक कीड़ा हूं। नहीं, आप कीड़ा नहीं हैं। आप मसीह में हैं, और खुदा बाप ने आपको इस काबिल बनाया है। उसने आपको रोशनी में, मुकद्दसों की विरासतों में आपके हिस्से के लिए लायक करार दिया। यीशु की हालत उसने जो आपके लिए खरीदा, खुदा ने आपको लायक करार दिया। आज हमारे साथ रहने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं खुदा के साथ आपके ताल्लुक के बारे में जानना चाहता हूँ। आप खुदा के साथ कहाँ खड़े हैं? आप जानते हैं सकाफत हमें बताती है कि अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें कुछ मुख्तलिफ बताती है कि हम में से कोई भी अच्छा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि माफ किए गए लोग ही जन्नत में जाते हैं। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसका मतलब यह है कि खुदा के साथ रास्तबाज होने की मेरी तमाम कोशिशें मुझे कभी नहीं बचा
सकती। और यीशु ने कहा कि वो वाहिद राह है। यीशु सलीब पर मर गया, उसने अपना खून बहाया और आपके गुनाह की कीमत अदा की, और हम में से हर एक को उसे कबूल करने की जरूरत है। दर हकीकत बाइबल यूहन्ना की किताब उसके पहले बाब में कहती है, लेकिन जितने ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आप उसे कैसे कबूल करते हैं? आप उसे अपने खुदा, अपने बादशाह के तौर पर कबूल करते हैं और आप उसके सामने अपनी जान कुर्बान करते हैं। और अगर आज आप खुदा के साथ रास्तबाज नहीं हैं, आप कहते हैं कि मैं खुदा के साथ रास्तबाज हूँ या होना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं भी आपको दावत दूंगा कि आप अपने दिल से मेरे साथ ये दुआ करें। मैं चाहता हूँ कि आप वाकई ये अल्फाज अपने दिल से ये बुलंद आवाज में कहें, ऐ खुदा, मुझे यकीन है कि यीशु सलीब पर मर गया, मुझे यकीन है कि उसके खून ने मेरे गुनाहों की कीमत अदा की है, मुझे यकीन है कि वो दोबारा जी उठा और मैं उसे अपना सारा दिल, अपनी सारी जान देता हूँ। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता। यीशु मेरा बादशाह है, मेरा खुदा है और मैं उसके लिए जीऊंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दुआ सुनी, मुझे माफ कर दिया गया, मेरा माजी चला गया, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये दुआ अपने दिल से की है तो आप खुदा के साथ दुरुस्त रास्ते पर हैं। मैंने एक किताब लिखी है और चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें। वो मैं आपको देना चाहता हूँ बिल्कुल मुफ्त। स्क्रीन पर दी गई मालूमात के जरिए आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हमसे राब्ता करें। हार्ड कॉपी भी हम आपको मुफ्त भेजेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अगर आपने अभी पास्टर जॉन के साथ मिलकर दुआ की है तो आपने अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है। हम आपके लिए बेहद खुश हैं। जैसा कि पास्टर जॉन ने कहा, हमें खुशी होगी कि हम अपनी किताब आपको फराहम करें जो बिल्कुल मुफ्त होगी, जिसका नाम है योर न्यू लाइफ। आप हमारी वेबसाइट walkingbyfaith.tv पर लॉग इन करें। इस किताब की कॉपी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। आप इसकी ऑडियो बुक भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये तमाम चीजें हमारी ऐप पर भी हासिल कर सकते हैं। ये किताब मुफ्त है और आपके सीखने के लिए एक बेहतरीन जरिया भी। वॉकिंग बाय फेथ दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का काम तेजी से कर रहा है। जब आप खुदा की बादशाही में बीज बोने का इंतखाब करते हैं तो शायद ये पैसा आपके हाथ से निकल सकता है, लेकिन इससे आने वाली बरकत अबद तक आपके साथ रहेगी। अगर आप हमारे साथ शराकतदार बनना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे आप दे सकते हैं। पहला, WBF गिफ्ट को 364881 पर टेक्स्ट करें। दूसरा, walkingbyfaith.tv/gift पर जाएं। या तीसरा, हमारी ऐप पर दिए हुए आइकन पर क्लिक करें। हम आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। जब आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं की दरख्वास्त भेजें। हमारी हफ्ता भर अकीदियत को देखें और जुड़े रहें। हम दुआ करते हैं कि आप हैरत अंगेज हफ्ता गुजारें।